Good morning, everybody. I'm Philippus of Solomon. My dear guys, I'm going to discuss before you in this episode on the basis of 2019 UPSC pre-questions. Okay, last year, which types of questions were asked on the basis of Indian economy? Several questions will be discussed here in bilingual Hindi and English. Both language will be used here. Okay, and you can get different concept and the average of your concept can be delivered that which types of questions and typical questions must be based. So there is also series by which you can make your concept and conceptualizations of your we can say preparation by which we can go through the questions which types of questions can be asked. Is it okay? So in this series I am going to discuss before you on the basis of last year 2019 UPSC pre-questions, and this is completely analytical questions and will be discussed analyzed by me here. Okay, and after this episode I will make you understand some relevant topics concerning to 5-year plans, okay, which I left and reviewed even today. The after, because sometimes other in the alternative of the classes you must get something important concerning to the choiceable by which you can also get interested yourself that you have to involve in your preparing your competition examinations. Is it okay? So this is the episode, this is the interpretations which I make you understand for the innovation. This is a part of innovative way by which you can go through your preparations of your examinations. Is it okay? तो आज का हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास अपीयर्ड है वह है अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया. इज इट ओके? अटल इनोवेशन मिशन. माय डियर गाइस, फर्स्ट वी हैव टू नो अटल व्हाट डू मीन इनोवेशन. इनोवेशन मीन टू से a new strategy and policy by which each and every people, especially I'm talking about the trader, I'm talking about the innovator, I'm talking about the entrepreneurs, they can be involved and accelerated themselves to do something extra on the basis of advanced packages, extra things where intellectuality, mind and different observations of the new and updated recent knowledge can be delivered. By that we can say investment is little and output is more and more. This is the part of innovation. Innovation is also a part, it is also a skill which can be developed, and now our government is also initiating different types of packages, programs to initiate the people to make innovated the people by which they can accelerate in what they consumed from the university and colleges, different types of degrees they consumed. They can also use and make a liability to make the partnership and contribution to our economy, contribution to our society and culture by which we can be developed not only for the particular people and the individual, this is the part of our country also. Is it okay? So now if I'm going to discuss about the Atal Innovation Mission. So Atal Innovation Mission, it is considered under Niti Aayog, National इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इज इट ओके? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अटल जो इनोवेशन हमारा मिशन है यह हमारा नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था. और इस मिशन के द्वारा नीति आयोग के पहले के पास जो एक प्रायोरिटी इंटरप्रिटेशन था वह था कि 2022 तक एक नया भारत का निर्माण करेंगे. इज इट ओके? टू फॉर्म अ न्यू इंडिया टिल 2020, यानी 2022 तक भारत का एक नया निर्माण करने के पीछे जो एक चाहत थी, जो एक विश था, इसके साथ ही अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने स्थापित किया. जैसा कि हमें पता है नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है. 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ. लेकिन नीति आयोग को स्थापना करने से पहले Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, has also announced on 15th August 2014 from Lal Killa, from the Red Fort. Okay,
और उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं प्लानिंग कमीशन के स्थान पर एक नया कमीशन के निर्माण कर रहा हूँ, ला रहा हूँ, और वही हमारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में पेश होता है। इज इट ओके? तो इनकी जो विचार थी कि 2022 तक एक नया भारत का हम निर्माण करेंगे, ठीक है। और ऐसी संस्था को उन्होंने निर्माण करने के लिए उन्होंने आगे लाया, जिसका काम है एक प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत अटल इनोवेशन जो हमारा मिशन है, यह एक योजना तैयार करेगा। क्या कमियां हैं, क्या लोगों को इनोवेशन वे में और देना चाहिए, बाय विच दे कैन इनिशियलाइज एंड दे कैन बी लॉन्च। तो इस तरह के जो पैकेज हम कर सकते हैं, जो तैयार करने की बात हो रही थी, इस तरह से हुआ। एंड दिस इज कंप्लीटली फोकस्ड to the innovations and research in the field of innovation and research by which these areas can be developed। और इसके पीछे यही रीजन था कि हम अपने देश की जो हमारा आविष्कार या हमारे पास जो एक रिसर्च अनुसंधान जिसको बोलते हैं, ये सारे चीज़ों को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, रीजेनरेट किया जाए, इस चीज़ों के साथ सरकार ने इस चीज़ों को लाया। इज इट ओके? जिसके तहत आप कह सकते हैं कि नीति आयोग ने इस मिशन के तहत, अंडर दिस मिशन, नीति आयोग देश भर के सिलेक्टेड कर सकते हैं 1500 स्कूलों को उन्होंने सेलेक्ट किया, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के आप कह सकते हैं जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं, ऐसे छात्रों को सरकार ने ऑप्ट करने की कोशिश कर रही है, सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और उसके ऊपर एक ऐसी आप कह सकते हैं नई परंपरागत एक विचारधारा लाने की कोशिश करे, जो एक टेक्नोलॉजी और रिसर्च की दुनिया में वह देश की एक नया नाम हासिल कराने में कहीं ना कहीं वो समर्थ हो सके। इस मिशन के तहत जो स्कूल में है, वे सारे स्कूल में अटल टिकरिंग लैब जैसे छात्रों को भी सिद्धांत या छात्रों के लिए इस तरह के स्थापित भी लैब किए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चे एकदम टीनेज कह सकते हैं, यंगर एज में वो साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, ये सारे चीज़ों के बारे में उनके पास एक कह सकते हैं कॉन्क्रीट एंड एप्रोप्रिएट उनके पास नॉलेज डेवलप हो जाए, जिटो के, जिससे कि अनुसंधान के, रिसर्च के जितने भी कार्य होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कंसर्न फंक्शंस ऑन द बेस ऑफ रिसर्च, ओके, दे कैन बी मॉडर्नाइज्ड एज पर द फैसिलिटी विच कैन बी प्रोवाइडेड। तो एक जो अनुसंधान की जो हमारी एक्टिविटी होती है, जो कार्य होता है, उसको एक आधुनिक सुविधाओं के साथ कैसे उपलब्ध कराया जा सके, इस पे मुख्य रूप से प्लानिंग कमीशन काम कर रही है। वह काम जो कर रही है अटल इनोवेशन मिशन के तहत कर रही है। इज इट ओके? और इसके तहत आप देखिएगा कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग के तरफ से प्रत्येक स्कूल जो इसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, वैसे प्रत्येक स्कूल को 10 लाख रुपया की वो सहायता राशि भी दे रहे हैं। इज इट ओके? मीन टू से 10 lakh as a contribution to develop science and technology in the field of research and innovations of the inventions. This types of package has been going is also provided and contributing allocating by नीति आयोग। Is it okay? सेकेंड क्वेश्चन की जो हम आते हैं, इज इट ओके? देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। इज इट ओके? तो यह क्वेश्चन पूछता है कि यह कौन पब्लिश करता है, ठीक है, यानी जो हमारे पास ग्लोबल कॉम्पिटिटिव जो हमारे पास रिपोर्ट होता है, इसको या हम कह सकते हैं कहाँ से पब्लिश होता है। इज इट ओके? तो माय डियर गाइस, फर्स्ट वी हैव टू नो Global Competitive Index and Report is completely published by World Economic Forum। तो ये जो कह सकते हैं पब्लिश होता है, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पब्लिश किया जाता है। एंड सिंस 2004 और विश्व आर्थिक मंच जो है 2004 से अर्ली कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष इस तरह की चीज़ों को पब्लिश कर रही है। इसमें मुख्य रूप से जो चर्चा की जाती है, जो ओपाइंड होता है, ठीक है, इसमें होता है जितने भी सेवरल कंट्रीज हैं, जितने भी विभिन्न देश हैं, ठीक है, उनको रैंक प्रदान करती है, ठीक है,
और इस रिपोर्ट में जो हमारा प्रतिस्थापन, लेकिन देखिए इससे एक क्वेश्चन और कभी बन सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, इस विचार को किसने क्वाइन किया होगा। तो इस विचार को दो इंसानों ने सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को प्रतिपादित किया या आविष्कार किया, या आविष्कार के जननी भी आप कह सकते हैं, किया। उसका नाम था जेवियर सलाह आई मार्टिन, जेवियर सलाह आई मार्टिन, और दूसरा था इल्सा वी अर्टाडी, इल्सा वी अर्टाडी। ठीक है, ये दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रतिस्थापित किए। और इसके पीछे रीजंस क्या थे माय डियर गाइस, और ये दोनों कह सकते हैं डेवलप किया, सीधी शब्द में ऐसे कही ना कि दोनों ने डेवलप ये चीज को किया, ये चीज ओके। और इसके पीछे ये जो हमारा रिपोर्ट होती है, ये हमारा ग्लोबल जो कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होता है के आधार पर विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज हैं, उनके भिन्न भिन्न जो फैक्टर्स हैं, वे सारे को एक ग्रुप करता है, इनिशियलाइज करता है, एकत्रित करता है, और उस आधार पे उनकी जो प्रदर्शन होता है, एक्सिबिशन होता है, उसको ये सामने रखता है। किसी देश की जो प्रोडक्टिविटी होता है, उत्पादकता जिसको बोलते हैं, उसकी क्या मतलब कर सकते हैं, निर्धारण करना, इवैल्यूएट करना, ये सारे कार्यों को करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रेस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है। लेकिन इसके पीछे कुछ हमारे पास फैक्टर्स, ऐसे खासतौर पर 12 फैक्टर्स होते हैं, उसको आप याद कीजिएगा। और जो हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव जो हमारा इंडेक्स होता है, इसमें टोटल जो बेस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स में 12 हमारे पास पिलर्स होते हैं, ध्यान देंगे। वो 12 पिलर्स के आधार पर, जिनमें से उसको जो है खासतौर पर 12 पिलर को 4 कैटेगरीज में, 4 श्रेणियों में बांट दी गई है। 4 श्रेणी कौन कौन है? सबसे पहला होती है एडॉप्शंस, या कह सकते हैं इन्वायरमेंट एडॉप्शंस, पर्यावरण अनुकूलन। ठीक है। दूसरा होता है मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। थर्ड जो होता है वो होता है इकोलॉजिक सिस्टम, जिसको हिंदी में बोले पारिस्थितिकी तंत्र। और चौथा जो होता है वो होता है मार्केटिंग। ये चारों हमारा कैटेगराइजेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है। और ये जो हमारा इंडेक्स तैयार की जाती है, इंडेक्स 0 से 100 के अंदर, या कह सकते 0 से 100 के बीच स्कोर प्रदान करती है। जिस देश को 100 स्कोर प्राप्त हो जाता है, उसे सबसे अच्छा पोजीशन माना जाता है। इज इट ओके? यानी उसको में वहां कह सकते हैं कि जो कम्पिटिटिवनेस है, जिसको प्रतिस्पर्धात्मक बोलते हैं, ठीक है, वहां पर सर्वोत्तम है, बहुत ज्यादा है। तथा जिसको 0 प्राप्त हो जाता है, वहां पर यह प्रदर्शित करता है कि वहां कम्पिटिटिव जो होती है वह बहुत अच्छी नहीं है, नेगेटिव की ओर जा रही है, या वो न्यूनतम है। इज इट ओके? माय डियर गाइस, एज पर अभी 2020 का तो रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, यदि 2019 की हम रिपोर्ट की बात करें, तो 2019 की रिपोर्ट में टॉप 5 में जो नाम आता है, वह पहला आता है सिंगापुर का, दूसरा आता है अमेरिका का, तीसरा आता है हांगकांग का, चौथा आता है हमारा नीदरलैंड का, और पांचवा आता है स्विट्जरलैंड का। 5, यदि हम टॉप 5 की बात करते हैं तो टॉप 5 इसमें ये जाते हैं। लेकिन यदि हम अपना प्यारा भारत की बात करते हैं, इंडिया रैंक एंड गॉट द पोजीशन बाय 68। तो इसमें भारत की पोजीशन जो है 68 है, 68 है। लेकिन भारत की जितने भी पड़ोसी देश की हम बात करते हैं, तो पड़ोसी देश में सबसे पहले आप मान लिया जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के 110वां पोजीशन है। यदि हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना का 28 पोजीशन है, 28वां पोजीशन है। हम बात करते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका का 84 यानी 84 पोजीशन है। यदि हम बात करें नेपाल, तो नेपाल गॉट 108 यानी 108 पोजीशन। इफ हम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश गॉट 105 यानी 105 पोजीशन प्राप्त करता है। इज इट ओके? तो इस आधार पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स एंड रिपोर्ट क्विज तैयारी की जाती है। इज इट ओके? अगला हम क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इकोनॉमी से क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किसी भी जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उनकी जो एसेट्स होता है निम्न में से शामिल नहीं होता। इट मीन टू से वी हैव टू फाइंड द एसेट्स विच एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर या इन
एनी कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भी कॉमर्शियल बैंक की जो एसेट्स होती है, परिसंपत्ति होती है, उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। और क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन है सबसे पहले इन एडवांस जिसको हम अग्रिम बोलते हैं, सेकंड है जमा डिपॉजिट, थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ जो है हमारा मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इज इट ओके? तो चलिए हम यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा मैं एक डेटा दे देता हूँ, आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास कॉमर्शियल बैंक्स हैं और कॉमर्शियल बैंक्स की जो हमारे पास एसेट्स होती है जिसको हम संपत्ति परिसंपत्ति बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, शामिल होने वाली चीज़ों को याद कीजिए, और जिसको हम बात नहीं करेंगे, जिसकी चर्चा नहीं करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। और फाइनली मैं इसका आंसर बता देता हूँ, तो इसका आंसर हमारा डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिपॉजिट को शामिल नहीं की जाती, इंक्लूड नहीं की जाती। तो इसमें इंक्लूडेड कौन कौन है? तो सेवरल थिंग्स आर इंक्लूडेड, लाइक नंबर 1 यू कैन गो थ्रू लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हिंदी इसका होता है तरलता और लाभप्रदता। तो लिक्विडिटी और जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है इंक्लूडेड होता है। कैश इन हैंड, जिसको हिंदी में भी कैश इन हैंड में भी बोलेंगे, ये भी इंक्लूडेड होते हैं। कैश एट द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक में हमारा कैश है, इंक्लूडेड होते हैं। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इंक्लूडेड होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। एडवांसेस अग्रिम जिसको बोला इंक्लूडेड होते हैं। वी कैन से बिल डिस्काउंट इंक्लूडेड होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ 1 ईयर और लेस टू मैच्योरिटी, ठीक है, 1 वर्ष या उससे कम की जो परिपक्वता के लिए जो हमारे सरकारी जो कर सकते सिक्योरिटीज होती है या प्रतिभूति जो होता है, ये सारे चीजों को इंक्लूड किया जाता है। नहीं इंक्लूड कौन किया गया? डिपॉजिट, यानी जमा जिसको हम लोगों ने बोला, ठीक है। तो डिपॉजिट को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। इज इट ओके? इस आधार पे एक और क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक को हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, निम्नलिखित से एक साथ बढ़ता है। किसके साथ बढ़ेगा? तो देखिएगा, सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं? मनी मल्टीप्लायर्स इज अ सिस्टम, इज अ टाइप ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन। इज इट ओके? यह हमारा आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट होता है। इज इट ओके? जिसमें जैसे मान लिया जाए, ये क्या होता है, मान लिया जाए कि टोटल जो भी हमारे पास रिजर्व मनी है, ठीक है, और उस रिजर्व या टोटल जो हमारे पास मनी है उनमें से कुछ हम रिजर्व अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो टोटल मनी में जो हम रिजर्व मनी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो वही जो हमारा भाग निकलता है वो मनी मल्टीप्लायर निकल जाता है। इज इट ओके? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो टोटल मुद्रा सप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में एनी इकोनॉमी टोटल मनी सप्लाई और जो हाई पावरफुल जो हमारे पास मनी होते हैं के अनुपात में जो स्टॉक में दोनों के बीच में जो डेरिवेशंस हो जाता है, जो कंपैरिजंस हो जाती है, तुलना हो जाती है, वही हमारा मनी मल्टीप्लायर्स कहलाता है। इन द शॉर्ट, इन द ब्रीफ वी कैन से मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू वी कैन से टोटल सप्लाई मनी। इज इट ओके? टोटल सप्लाई मनी बाय टोटल पावरफुल स्टॉक्स मनी, ठीक है, या यू कैसे रिजर्व मनी। तो जो भी हमारे पास टोटल हमारा सप्लाई जो मनी, उसमें जब हम रिजर्व मनी से या स्टॉक मनी जो हमारा रिजर्व है उससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मनी मल्टीप्लायर्स निकल जाएगा। इज इट ओके? तो इस आधार पे क्या होता है कि टोटल जो कह सकते हैं जो हमारा मनी यानी मुद्रा जो पूर्ति होता है वो शक्तिशाली जो भी हमारा पावरफुल मुद्रा होते हैं कि स्टॉक से अधिक हो जाती है। इज इट ओके? तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर्स होते हैं उनकी मान 1 से अधिक हो जाता है, उनकी जो वैल्यू हो जाता है मोर देन 1 हो जाती है, ठीक है। अब 1 से अधिक हो जाने के कारण फिर क्या होता है कि जो भी हमारे पास मनी मल्टीप्लायर्स को जो हम इवेलुएट करते हैं या निर्धारण करते हैं, तो इसमें जो होती है हमारे पास करेंसी डिपॉजिट की जो रेशियो होता है और रिजर्व डिपॉजिट का जो रेशियो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास करेंसी डिपॉजिट रेशियो होता है तथा जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होता है, ठीक है, ये दोनों की जो रोल होता है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और इस आधार पर जैसे जैसे जो भी जनता या कह सकते हैं कंज्यूमर्स की बैंकिंग आदतों में उनकी जैसे जैसे एक हैबिट डेवलप होता है, ठीक है, विकास करता है, वैसे वैसे बैंकों में डिपॉजिट क्या होता है, बढ़ता है। इट मीन टू से
जैसे मान लिया किसी भी बैंक पे हमारा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हुआ तो मैं पैसा वहाँ पर डिपॉजिट करने लगा। अब एक सामने वाला हमसे पूछा यार आप पैसा कहाँ रखा, हमने कहा कि यार उस बैंक में पैसा सेफ है, ठीक है, तथा वहां पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलती है, तो क्या होगा बगल वाले भी उसमें जाके खाता खुला लें। तो इससे क्या होगा, लोगों में एक डिपॉजिट करने की जो हैबिट था, ठीक है, ये डिपॉजिट करने की हैबिट धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होने लगे, ठीक है। तो जब डेवलप होने लगे तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने लगे, और डिपॉजिट करने से क्या हुआ कि बैंकिंग के पास जमा जो था वृद्धि होने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बैंक के पास रिजर्व ज्यादा होने लगे, उनके पास पैसा अधिक मात्रा में होने लगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि मनी की बैंक के पास जो एक लायबिलिटी ऑफ द एसेट्स जो था वो ग्रो कर गया, बूस्ट कर गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो वैल्यू में भी एक ग्रोथ कर जाता है, बढ़ जाता है। इज इट ओके? तो इस आधार पे हम कह सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन के हम डिस्कशन आपको दे रहा हूं, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और नॉर्मली मैं जो दे रहा हूं आपको ये केवल इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, अगला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? देखेंगे जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स हैं उनके जो भी सेक्रेटरी होते हैं, उनकी सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले माय डियर गाइस, वी हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग कंसर्निंग टू द इंटरप्रिटेशंस ऑफ दैट क्वेश्चंस। दैट हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, हम डायरेक्ट इसके आंसर बोल देते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो होते हैं, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो हमारा बैंक होते हैं उनके जितने भी आप कह सकते हैं अध्यक्ष यानी सेक्रेटरी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो बैंक ब्यूरो जो बोर्ड होता है, इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल टू डेवलप एंड टू मेक द पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉर ऑल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, having the task to improve the governance of public sector banks and financial institutions, and additionally we can see to develop banks in developing strategies and capital raising plans। तो इसका मुख्य जो काम है, जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हमारे पास पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, उनकी एक नया स्ट्रेटजी तैयार करके देना जिसके तहत वो बैंक फले फूले तथा लोगों की जो सेवा है उसे वो सेवा प्रदान करे। इज इट ओके? और साथ ही साथ एक एडिशनली की क्या हो जाती है कि उनमें एक ऐसी स्ट्रेटजी देता है जिससे कि उनकी कैपिटल जो होते हैं उनके प्लान के तहत वो रेज कर जाता है। इज इट ओके? एंड दिस रिकमेंडेशन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो दिस रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय पी.एन. नायक कमिटी। इज इट ओके? यानी सबसे पहले पी.एन. नायक कमिटी ने इस चीजों को दिया था। अभी वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन है वह भानु प्रसाद शर्मा जी हैं। किसके? बैंक बोर्ड ब्यूरो के, ठीक है, यानी BBB, ट्रिपल बी कह सकते हैं ना, बैंक ब्यूरो बोर्ड के अभी अध्यक्ष जो हैं या चेयरपर्सन आप कह सकते हैं जो हैं वह भानु प्रसाद शर्मा है। अब हम बात करें कि BBB है क्या, तो सबसे पहले याद रखेंगे कि बैंक ब्यूरो बोर्ड इट इज एन ऑटोनोमस बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। यह एक भारत सरकार के चयन करने के लिए, खासतौर पे BBB को चयन करने का एक उपक्रम है, ठीक है। और यह भारत सरकार के एक स्वायत्त भी निकाय आप कह सकते हैं, इस स्वायत्त एक निकाय भी है जिसकी स्थापना आपको हुई थी 2016 ईस्वी में, ठीक है। और 2016 में जो इसकी स्थापना हुई थी वह इसके पीछे रीजन था कि जितने भी सरकारी बैंक है तथा वित्तीय संस्थान है, शीर्ष पदों पर जो उनके आप कह सकते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ उद्देश्य को तय करना, ठीक है, ये सारे जो कार्य थे इनके पीछे कार्य थे। अब मैं इसकी कुछ और डीप में बताने की कोशिश करता हूँ इनकी और क्या क्या ऐसे कार्य हैं। तो इनकी जो मुख्य कार्य हैं, ठीक है, तो सरकार बैंकों को तथा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो हाफ टाइम के लिए हो या फुल टाइम के लिए हो या पूर्णकालिक हो, या चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या वर्किंग पर्सनल्स हैं, ये सारे के चयन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वह BBB का होता है, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का होता है, ठीक है। दूसरा, ये सारे जो उपयुक्त हमारे स्तरीय जो कह सकते हैं डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति, इनकी कार्यकाल यानी कह सकते हैं वर्किंग पीरियड, ठीक है, ये सारे को कब तक कौन इंसान पद पे बने रहेंगे, कब उनको रिटायर्ड होनी है, उनकी क्या सेवा होगा, सर्विस होगा, ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं ये सारे कंपोज किसके द्वारा किए जाते हैं, BBB के द्वारा। इज इट ओके। और जितने भी हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और तथा जितने भी अधिकारी होते हैं, उनकी जो परफॉर्मिंग जो एक्टिविटीज होता है, एक्शंस एंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन भी जो तैयार करने के लिए जो डेटा होता है उसकी भी जिम्मेवारी BBB को प्राप्त है, ठीक है। तो इस तरह के कार्य जो होता है BBB के अंतर्गत काम किया जाता है। एक और क्वेश्चन होगा में भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को मैं और हाँ एक और क्वेश्चन आपको है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी नहीं देता हूं। एक और इकोनॉमी का नजर आ गया, इसमें है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक, कारोबार सूचकांक जो होती है इसको उप सूचकांक नहीं है, यानी इसमें इंक्लूड कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक, ये तो आपको पता होगी। वर्ल्ड बैंक जो होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पब्लिश करती है। इज इट ओके। अब चलिए इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में जान जाते हैं। तो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट होता है वे सारे रिपोर्टों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें लगभग 10 ऐसे मेजरमेंट्स पैरामीटर्स हैं, 10 मापदंड आप कह सकते हैं, ऐसे चीजें हैं जिसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। इज इट ओके। और इससे फायदा क्या होती है या इससे क्या एक आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो इससे जो मेन आउटपुट निकलता है वह मेन आउटपुट होता है कि जो किसी भी देश में जो हम किसी भी प्रकार के जो ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं या कारोबार करते हैं, ठीक है, उसके लिए इन्वायरमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है और उस वातावरण के अनुरूप कितना हमें अनुकूल अपने आप को होना होगा, ठीक है। ये सारे जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, those parameters are completely discussed and considered under each of doing reports, okay, business doing report। is it okay। तो इसमें 10 हमारा पैरामीटर्स क्या है, ये पैरामीटर्स यू मस्ट रिमेम्बर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला होता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें होता है नए प्रोफेशन या नए ट्रेड, नया व्यवसाय की शुरुआत करना। दूसरा होता है टैक्स का भुगतान करना। तीसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की उपलब्धता, ठीक है। चौथा होती है जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है यानी जिसको हम लोग बुनियादी ढांचा बोलते हैं, इसके निर्माण करने के लिए परमिशन ले लेना, अनुमति ले लेना, चाहे वह निर्माण परमिट है तो निर्माण परमिट के आधार पर उसे सबसे पहले हमें एक परमिशन लेना होता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू बी रजिस्टर्ड एंड आवर कैपिटल वेल्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड, यानी संपत्ति का पंजीकरण कराना जरूरी होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक रूल्स होनी चाहिए या ऐसे आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल, जिसके तहत हम ऋण लेने में अपने आप को हमें सहूलियत महसूस हो, जहां पर बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। एक सहूलियत, एक आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके जिसके द्वारा हम अपने जो भी हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो भी हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसमें किसी भी प्रकार के जो बैरियर्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, ना हो, बल्कि फंडिंग बहुत आराम से मिल जाए, ठीक है। तब जाकर के हमारा ईज ऑफ बिजनेस जो डूइंग की बात करें, ईज मतलब आसान बना देना, ठीक है। तथा जो छोटे छोटे यानी स्मॉलर या मीडियम आप कह सकते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना होता है, सिक्योरिटी भी देना होता है, यानी हिंदी में बोलेंगे तो छोटे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। फिर हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की हमारी प्रोसेस हो जाती है, प्रक्रियाएं हो जाती है। उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है यानी नियम है, मेथड है, इसको भी एक फ्लेक्सिबल बनाना, एक सही वे में रहना जिससे कि लोग उसे एक्सेलरेट कर सके। इज इट ओके। और लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इज दैट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यानी जो भी आप कर रहे हैं आप में और वहां की सरकार में
ये दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एक स्पष्टीकरण होनी चाहिए, जिससे कि एक दूसरे पे किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, जिससे कि आगे चल के बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या क्रिएट हो सके। इज इट ओके? तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में आप शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। बल्कि भारत में विश्व बैंक की जो एक न्यू जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, वह हमारा कारोबार सुगमता सूचकांक लेकर के आती है, ठीक है। कारोबार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो हम लोग बोलते हैं, इस आधार पर भारत को निकाला जाता है। अभी नया वाला रिपोर्ट आप देख लीजिएगा कि न्यू रिपोर्ट जो 2019-20 का रिपोर्ट जो है, इस आधार पे क्या पोजीशंस भारत को मिले हैं, ठीक है। और अगले जो हम डिस्कशन देंगे, अगले डिस्कशन में हो सकता है कि फिर बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे फिर मैं एक बार देख लेता हूँ कि इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस हैं, वे क्वेश्चंस को आई विल डिस्कस यू, ओके। एंड आफ्टर रिमेन टॉपिक्स ऑफ 5-year plan, I will fulfill, I will finalize each and everything concerning to what I made you understand concerning to data. The database question will be completed before you. All the best. Thank you. Okay.